جی جی شیڈو ورک، ہاں جی. اچھا وہ آپ نے اٹینڈ کیا تھا کلاس، آپ نے یا ریکارڈنگ دیکھی تھی؟ اچھا آپ پہلے آپ سیکھا ہے آپ نے. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ہاں میں آپ کو یہ مطلب بیسک تو بتا رہی ہوں نا، بیسک ہی بتا رہی ہوں. اس کے بعد جتنی بھی رننگ اسٹچ میں جتنی بھی ہے اسٹچز وہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا اچھا اوکے 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 اوکے. جی جی ہاں وہ پتا نہیں مائک میں کیا دقت ہو گئی، آئی ایم سو سوری. اوکے. چلیے چلیے رننگ اسٹچ آئیے آپ کو. یہ رننگ اسٹچ ہے، رننگ اسٹچ. ٹھیک ہے. مشین نہیں، مشین تو نہیں بولتے ہیں رننگ اسٹچ کو. رننگ اسٹچ بکھیا اسٹچ، کچا ٹاکا جیسے کہتے ہیں نا، کچا ٹاکا وہ ہے یہ. ہاں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے. اب یہ آ گئی، اس کے بعد ہے لوپڈ رننگ اسٹچ. سیکنڈ ہے لوپڈ رننگ، LOO. نہیں میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اگر آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ ہے رننگ اسٹچ. اب ہے لوپڈ رننگ. لوپڈ رننگ کے لیے کیا کریں گے، ایک لائن بنائیں گے، اس کے اوپر بنائیں گے رننگ اسٹچ. لوپڈ رننگ کے لیے سب سے پہلے یہ رننگ اسٹچ فیملی ہے ساری. میں آپ کو 5 اسٹچز بتاؤں گی رننگ فیملی کس کے. لوپڈ رننگ کے لیے سب سے پہلے تو رننگ اسٹچ بنائیں گے. رننگ اسٹچ بنا لیجئے. اس کے بعد آتی ہوں، یہ دیکھیے رننگ. یہ رننگ اسٹچ بنا لی. اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم دوسرا تھریڈ لیں گے. اب یہاں نوٹ لگا دیں گے پیچھے. پیچھے تو یہاں نوٹ لگ جائے گی اس کے. ٹھیک ہے، نوٹ لگا دی. اب دوسرا تھریڈ لیں گے، اس کا کانٹراسٹ تھریڈ. جیسے میں نے بلیک لیا ہے تو آپ وائٹ لے سکتے ہیں، یا پھر کوئی سا بھی اورینج پنک کوئی سا بھی. میں لیتی ہوں اس کا کانٹراسٹ پنک لیتی ہوں میں. ٹھیک ہے. یہ ہے لوپڈ رننگ. ٹھیک ہے. لوپ لگانے کے لیے سب سے پہلے رننگ اسٹچ بنائیں گے، اس کے بعد لوپ رننگ بنیں گی. یہ دیکھیے لوپڈ کیسے بنے گی. سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کے اس سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے اوپر کی طرف سے اس کو یہاں سے نکالیں گے دھاگے کو.
और फिर पीछे से डालेंगे, ठीक है। आगे से डालेंगे तो ना धागा ये थोड़ा तीखी है ना, तो इस वजह से ना ये धागा थोड़ा इसके धागे को ये होगी ना तो अटकेगा, इस वजह से ऐसे डालेंगे। इसके अंदर डाला, ये देखिए ये धागे के अंदर डालनी है, उसके अंदर नहीं डालनी, कपड़े के अंदर। ये कपड़ा भी आ रहा है साथ में, ठीक है, इसलिए ये डाली। और फिर यहाँ से यहाँ डाली, फिर ठीक है, यहाँ से ये डाला। इस पीछे से डालेंगे, ठीक है, पीछे से डालना होता है ताकि ये ना धागा अटके ना। ऐसे करा और फिर वापस से इसमें डाला, ठीक है, ये हो गई लूप दे रनिंग। फिर वापस से इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर देन अगेन राइट से इसमें ऊपर आएगा धागा, और फिर लेफ्ट से नीचे राइट में जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ आगे लेफ्ट में आएगा, देन अगेन बैक में डालेंगे, बैक से देन यहाँ डालेंगे, देन अगेन आगे, देन यहाँ से बैक, देन फ्रंट, राइट से लेफ्ट ऊपर की तरफ, देन अगेन पास से इसके, ठीक है, देन अगेन यहाँ से, देन अगेन यहाँ से। ये हो गई लूप्ड रनिंग, ठीक है। फिर एंड कैसे करना है, एंड इसको यहाँ से, जहाँ से हमने यहाँ एंड में यहाँ डाल देना है, फिर नीचे, बस इस तरीके से ये हो जाएगा एंड। धागे को एडजस्ट कर देना है कि ये ना ऊपर नीचे ना हो, खींचे ना। तो ये हो गया, देखिए अब ये थोड़ा ऐसे हो रहा है ना छोटा बड़ा, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगी लूप्ड रनिंग, ठीक है, ये हो गई लूप्ड रनिंग। आई समझ सिस्टर, लूप्ड रनिंग जी। अब दूसरा है, थर्ड है, ये फर्स्ट हो गई रनिंग, सेकंड हो गई लूप्ड रनिंग, अब थर्ड है लेस्ड रनिंग, लेस्ड रनिंग स्टिच। लेस्ड रनिंग के लिए भी रनिंग स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसी थ्रेड से बना लेती हूँ रनिंग स्टिच, फिर कंट्रास्ट से मैं ब्लैक से इसको फिल कर दूंगी लेस्ड को, कि सबसे पहले रनिंग स्टिच बनाएंगे। लेस्ड रनिंग के लिए सबसे पहले रनिंग स्टिच बनेगी। देखिए ये जो इक्वल आपको लेने आने चाहिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आएगा ये, ठीक है। ये लेस्ड रनिंग,
ٹھیک ہے، اب اینڈ ہو گیا دھاگا. اس کو دھاگے کو ہمیشہ اینڈ اس طریقے سے کرتے ہیں. پیچھے سے دھاگا لیا، اس میں ڈالا اور ایک نوٹ لگائی، اور اس میں سے لے کر پھر اس میں سے نکال لیں گے. ٹھیک ہے، اور کٹ کر دیں گے سیزر سے. اس طریقے سے بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب دوسرا تھریڈ لیں گے کانٹراسٹ کا. میں بلیک لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایسے سٹارٹ کریں گے. یہیں سے اوپر سے لیفٹ سے پہلے یہاں ڈالیں گے دھاگا، لیفٹ سے. اس کے بعد یہاں سے ڈالیں گے اوپر سے، لیفٹ سے رائٹ کی طرف، اوپر کی طرف سے نیچے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس کو چھوڑ دینا ہے، یہاں پر دھاگے کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا لیسڈ. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں سے ڈالیں گے پیچھے سے. ٹھیک ہے، اب یہ نا جیسے دوپٹے کے جو بارڈرز ہوتے ہیں اس میں کام آتی ہے یہ اسٹچ. ٹھیک ہے، آپ رننگ اسٹچ سے آپ اس کو روک لو ایجز کو، پھر لوپڈ بنا لو، پھر لیسڈ بنا لو. تو لیس ہوتی ہے نا ویسے کام آتی ہے یہ. ٹھیک ہے، دوپٹے میں جو بارڈرز بنتے ہیں نا اس میں کام آتی ہے. جو بھی بارڈرز بنتے ہیں جیسے دامن میں بن گیا ہے نا، اور بیڈ شیٹ میں بارڈر بنا لو، پلو کور میں بارڈر بنا لیجئے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے نیچے یہ لیسڈ رننگ ہے. پھر اگین یہاں سے نیچے ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ بنے گی. اور اینڈ کیسے کریں گے؟ یہاں اینڈ کر دیں گے اس کو نیچے، نیڈل کو نیچے کر کے اور یہاں پر اینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی لیسڈ رننگ. ٹھیک ہے، آئی سمجھ سسٹر لیسڈ رننگ. آئی سمجھ سسٹر لیسڈ رننگ. یہ دیکھیے یہ بارڈر سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، دوپٹہ کا جو بارڈر ہوتا ہے نا اس پہ، یا پھر دامن میں بنا لیجیے، کہیں بھی بنا سکتے ہیں بارڈرز پہ. ٹھیک ہے، اب دوسری ہے، فورتھ ہے انٹرلیسڈ رننگ. انٹرلیسڈ رننگ اسٹچ. اس کے لیے بھی ایک سب سے پہلے رننگ اسٹچ بنائیں گے. اس کے لیے بھی سب سے پہلے رننگ اسٹچ بنے گی، اس کے بعد بنے گی رننگ اسٹچ کے بعد انٹرلیسڈ. رننگ اسٹچ بنا لیجیے سب سے پہلے. یہ پوری میں رننگ اسٹچ فیملی بتاؤں گی، پھر چین اسٹچ فیملی بتاؤں گی، پھر ایسے کر کر کے جیسے 19 اسٹچز فیملیز ہیں. ٹھیک ہے، تو 19 پوری بتاؤں گی میں آپ کو
1 مہینے میں. اس کے بعد میں بتاؤں گی کوئی بھی ایک ٹریڈیشنل اسٹیٹ کی ایمبرائڈری، جیسے لکھنؤ کی ہو گئی یا پھر کچھ کی ہو گئی، گجرات کی ہو گئی، مہاراشٹر کی ہو گئی، راجستھان کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. پھر میں بتاؤں گی آپ کو چھاپنا، بتاؤں گی کپڑے پہ کیسے پرنٹ کرتے ہیں وہ بتاؤں گی. جی سسٹر، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ جی ٹھیک ہے، پہلے سب سے پہلے رننگ اسٹچ بنا لی. اس کے بعد دوسرا کنٹراسٹ دھاگا لینا ہے. اس میں بھی کنٹراسٹ دھاگا لیں گے. جو دھاگا ہم نے جس دھاگے سے ہم نے رننگ اسٹچ بنائی ہے اس سے نہیں بنائیں گے، دوسرے سے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب میں نے یہاں بلیک لیا ہے، میں پنک لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، پنک. اب انٹرلیسڈ میں 3 تھریڈ یوز آئیں گے. ٹھیک ہے، انٹرلیسڈ اسٹچ میں 3 تھریڈ یوز آئیں گے. اب سب سے پہلے تو یہ بلیک سے ہو گیا، رننگ اسٹچ ہو گئی. اس سے بنائیں گے، پنک سے بناؤں گی میں. یہ دیکھیے، اب انٹرلیسڈ میں کیا کریں گے، چھٹی ہوگی نا سنڈے کی. ہاں، ہوم ورک تو آپ دوں گی میں، تو کرنا تو پڑے گا، کیونکہ ہوم ورک نہیں کریں گے آپ تو سیکھیں گے کیسے. جی چھٹی رہے گی سنڈے کو، کیونکہ 19 فیملیز ہے نا، اسٹچ فیملی، تو ایک ایک کا ڈیزائن بتانا، پھر اس میں پورا ٹائم چلا جاتا ہے، اس لیے نا پورا مہینہ چلا جاتا ہے. اس لیے پھر میں نے چھٹی صرف سنڈے کو رکھی ہے. آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ان شاء اللہ. ٹھیک، ٹھیک ہے. اچھا اچھا. جی اچھا، تو ٹائم کا آپ 3 سے 4 فری ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا. اچھا، 1 سے 2 آپ فری ہیں، 1 سے 2. ٹھیک ہے، 1 سے 2 کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم بھی تھوڑا کھانا وانا بنانا رہتا ہے، تو آپ کو بھی ٹائم نہیں ملے گا پھر. ٹھیک ہے،
तो दिन में कर लेंगे, ठीक है, 1 से 2 कल से इंशाल्लाह। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटरलेस्ड में वही जैसे लेस्ड रनिंग बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। पीछे से डालेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, ये देन अगेन ऐसे, देन अगेन इंटरलेस्ड में पहले लेस्ड रनिंग बनेगी, उसके बाद एक और लेस्ड बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरलेस्ड, ठीक है। ये एक राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, ऐसे डालते जाना है। ठीक है, यहाँ पर एंड कर देना है। अब दूसरा थ्रेड लेंगे, ठीक है। ये थ्रेड को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और दूसरा थ्रेड से फिर इंटरलेस बनाएंगे। ये मैं ले रही हूँ पर्पल थ्रेड, पर्पल कलर का, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या बनाएंगे, यहीं से यहाँ से, यहीं से नीचे से, ठीक है। ये ऊपर से बनाया था, ये नीचे से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ, सॉरी वो वैसे ही बन गया। एक मिनट, मैं धागा डाल लूँ इसमें। ये देखिए, यहाँ से डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से ऐसे जाएगा नीचे धागा, और फिर ये दोनों पैरेलल दिखेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। फिर यहाँ से जाएगा, फिर ये नीचे से यहाँ से जाएगा धागा नीचे, देन अगेन ये 3 कलर से बनेगा, ठीक है। रनिंग स्टिच अलग बनेगी कलर से, फिर पिंक कलर अलग बनेगा, एंड देन अगेन पर्पल कलर मैंने लिया है, 3 कलर से बनेगा, ओके। ये देखिए, ऐसे बॉर्डर्स बना सकते हैं आप, इससे बहुत अच्छे लगते हैं बॉर्डर्स। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, एंड देन क्लोज करेंगे। क्लोज के लिए यहाँ यहीं से बस नीचे कर देंगे, या क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरलेस्ड रनिंग स्टिच, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटर कर रहे हैं ना, इंटरलेस्ड। तो अब ये थोड़ा सा ऐसे ठीक कर देंगे इसको, ऊपर नीचे होता है ना, तो इसको ऊपर नीचे से ऐसे ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा।
सिस्टर ये जी हाँ ये ना ये हो जाते हैं, जैसे धोते हैं ना मशीन में धोते हैं आजकल कपड़े, ये हो जाते हैं, लेकिन लेकिन अब या तो आप इसको यहाँ से रोक दो, देखो ऐसे रोक दो, ठीक है, जैसे हाँ नीचे से रोक दो तो ये नहीं हिलेगा, फिर ऐसे करके ऐसे रोक देते हैं ना तो नहीं हिलता है ये, ठीक है, दोनों साइड से, इसमें भी रोक देते हैं इसमें भी रोक देते हैं तो ये हिलता नहीं, देखो ऐसे रोक दिया, ऐसे, तो अब ये नहीं हिलेगा, ठीक है, ऐसे रोक देते हैं तो ये नहीं हिलता है फिर। मशीन में धोते हैं ना आजकल कपड़े, तो मशीन में तो पूरा कपड़े का पूरा वो हो जाता है ना, तो इस वजह से ना तो आप रोक देंगे ना तो नहीं जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा ये। अब फोर्थ बताई है, फोर्थ है इंटरलिस्ट, अब है वाइप रनिंग। वाइप रनिंग स्टिच में वही सबसे पहले रनिंग स्टिच बनेगी, वाइप रनिंग में ये फ्रेम चेंज करती हूँ, फोर्थ फिफ्थ है वाइप रनिंग, WHIPPEED, वाइप रनिंग, ये पूरी रनिंग स्टिच फैमिली है रनिंग की। इसमें सबसे पहले रनिंग स्टिच बनाएंगे। मैं आपको होमवर्क ज़्यादा नहीं दूंगी ताकि है ना आपको आप डेली होमवर्क भी कर लें और क्लास भी अटेंड कर लें इंशाल्लाह, अगर आपकी तबीयत ठीक रहे तो। ठीक है, सबसे पहले रनिंग स्टिच बनाएंगे। ये बन गई रनिंग स्टिच, इसको रोक दिया यहाँ से पीछे से, नॉट लगाना है पीछे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो सिक्योर रहे, इधर उधर धागा खुल ना जाए, इसलिए नॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद लेंगे, मैंने लिया है पर्पल, मैं ब्लैक ले रही हूँ, ब्लैक कलर कॉन्ट्रास्ट कलर लेंगे दूसरा इसका, ये देखिए। अब वाइप के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिया, ऊपर से धागा निकाला, ठीक है, अब पीछे से डालेंगे इसको ताकि उलझे ना ही नीडल में, पूरा ले लेंगे धागा, ठीक है, देन अगेन यहाँ से लिया, यहाँ से डाला, देन अगेन यहाँ से लिया, इस तरीके से, जैसे हाँ ये एक ही लूप में डालना है नीचे से, ठीक है, नीचे से एक ही लूप में डालना है जी। नहीं 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 नहीं, जैसे
बैक से नहीं डाल रही हूँ, नीचे से डाल रही हूँ, ठीक है, यहाँ से। ये एक ही साइड में बनेगा, ठीक है, ये अलग साइड में था, ये डिफरेंट साइड, ये बोथ साइड में था, ठीक है, ये एक ही साइड में बनेगा, वाइब्ड। ठीक है, यहाँ से फिर क्लोज कर देंगे। आए समझ, या दूसरा वापस बताओ सिस्टर, नहीं आया समझ? जी, यहाँ से मैंने निकाला, यहाँ से इसको ऐसे लपेट, ऐसे रैप करते गई मैं, ठीक है। नीचे से मैंने किया है, ऊपर से कुछ नहीं लिया है, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ नीचे से मैंने रैप किया है इसको ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब है लेस्ड एजिंग। लेस्ड एजिंग के लिए सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी रनिंग स्टिच। अब है सिक्स्थ है लेस्ड एजिंग। लेस्ड एजिंग के लिए सबसे पहले मैंने बनाई रनिंग स्टिच बनाऊंगी। ये रनिंग स्टिच फैमिली, इसलिए सबसे पहले इसमें रनिंग ही बनेगी। सबसे पहले जितनी भी डिजाइन्स बनेंगी इसमें सबसे पहले रनिंग ही बनेगी, क्योंकि ये रनिंग फैमिली में से है, इसलिए। ये मैंने बनाई रनिंग। उसके बाद दूसरा थ्रेड लिया कॉन्ट्रास्ट का, मैंने लिया पर्पल, ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक और लाइन खींच देंगे, ताकि ना हमें एक बेस मिल जाएगा। ठीक है, 2 लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके सेंटर से। ठीक है, इसके सेंटर से, यहाँ से, और यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से अंदर, फिर अंदर गया ये, और यहाँ पर वापस यहीं डाल दिया। ठीक है, ये एक बन जाएगी ड्रॉप की तरह। ठीक है, ये देखिए एक ड्रॉप लग रही है ना। फिर वापस से इसके सेंटर से इन दोनों के सेंटर से लेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे से, यहाँ से मैंने धागा नीचे लाई, ऊपर लाई, ठीक है, फिर यहाँ से मैंने डाला, देन अगेन यहाँ से डाला, देन ये हो गया लेस्ड एजिंग। एजेस भी बनता है ये लेस, जैसे कि नाम है वैसे ही इसका काम है। एजिंग जो है वो एजेस भी बनता है बॉर्डर्स पे। ठीक है, ये बन गया लेस्ड एजिंग। इस तरीके से बनेगा ये पूरा। ठीक है सिस्टर, आपको समझ आई ये वाली लेस्ड एजिंग? हाँ, तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ना रनिंग स्टिच फैमिली, रनिंग स्टिच बनानी है,
और ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, रनिंग स्टिच बनानी है, रनिंग स्टिच की प्रैक्टिस करनी, वैसे आप सीख चुके हैं तो आपको आती होगी रनिंग स्टिच। और फिर लूप्ड रनिंग, लेस रनिंग, इंटरलेस रनिंग, वाइप्ड रनिंग, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और लेस्ड एजिंग, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं होमवर्क आपको है ना ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या बनाना है इससे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको आपका हाथ साफ होगा। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है जी। और मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क के लिए रनिंग स्टिच फैमिली, लूप रनिंग, लेस्ड, इंटरलेस्ड, वाइप्ड और लेस्ड एजिंग, इन सब की एक एक आप लाइन, या तो लाइन बना लीजिएगा, या सर्कल, या फिर स्क्वायर, ठीक है। कि आपको ना स्क्वायर बनाएंगे ना, तो आपको ना जैसे डिज़ाइन कैसे बनेगी, डिज़ाइन पे कैसे वर्क होता है, वो सब वो मोड़ना कैसे होता है, जैसे जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर एजेस पे मालूम चलेगा कि कैसे मोड़ना है, कैसे यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा आएगा आपको खुद करना, ठीक है। तो आप ऐसे स्क्वायर में और सर्कल में, स्क्वायर और सर्कल में रनिंग स्टिच, लूप रनिंग, लेस रनिंग, इंटरलेस रनिंग और वाइप्ड और लेस्ड एजिंग, ठीक है, ये सब बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जी, दोनों में, स्क्वायर और सर्कल में, ठीक है। आपको समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में आप देख लीजिएगा। और लेस एजिंग आई आपको समझ? जी ठीक है। अब आपको ये समझ आई, रनिंग, लूप्ड, लेस्ड, इंटरलेस्ड, वाइप्ड एंड लेस एजिंग। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोलिए, मैं समझाती हूँ फिर। हाँ, ये वाला, फोर्थ वाला इंटरलेस्ड। जी हाँ, रिकॉर्डिंग में सेंड करूँगी, आप रिकॉर्डिंग से भी देख के कर सकते हो, और कुछ पूछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा, या ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में शायद ओपन नहीं है, तो मैं पर्सनल में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया, या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, कल आप बताइए। 1 बजे का रख ले, मीटिंग एंड हो गई।